Jai Hind, my dear student. Once again, I Bipin sir of Sri Ram Public School welcome you all to the online class of English Literature. My dear student, till now we have completed chapter number 1 and chapter number 2 and two of the poems. But now, today, here I am with a new comical story. Actually, this story is related to the history of India, and in modern history it has been described. So my dear student, it is all about the time of independence, what happened at the time of independence, everything whichever was happening in those periods, it has been described here in the way of comical story. So let us read this chapter and find out what are the facts, because this chapter not only deal with the subject of English but also with the subject of history. If you would be getting enough knowledge about the history, you would be obtaining good marks in your examinations. So today here I am with chapter number 3, which is from your NCERT book of class 8th, Honey Dew. So my dear student, today I am here with the chapter Glimpses of the Past. Glimpses का मतलब होता है एक झांकी, somewhere, a very quick and not complete view of somebody or something. This is known as glimpse. Note it. A very quick and not complete view of somebody something. तो एक झांकी, हिंदी में कह लो झांकी, हिंदी में यू कैन कॉल इट झलक. सो इट इज़ नॉट अबाउट ऑल अबाउट, जैसा कि मैंने कह दिया कि इसमें हिस्ट्री है तो पूरा हिस्ट्री मतलब कि हर एक चीज़ें नहीं डिस्क्राइब होंगी, लेकिन आपको पास्ट के समय में जो हुआ, हमारे बीते हुए कल में जो हुआ, उसकी एक झलक तो हम लोग देख सकते हैं. लाइक वी आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्ले, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले ऑल द पार्ट्स, we are showing the jhanki of the some parts past. So let us see what in the chapter is been asking to us to do. First of all, here you can see that it is written, before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country in 1757 to 1857. This picture speech bubbles will help clarify your understanding of condition that led to the event known as First War of Independence in 1857. यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस यानी कि कुछ पुराने न्यूज़पेपर से निकाली गई हैं, ये सब पुराने न्यूज़पेपर में थी, उनकी ग्लिम्पसेस एक झलक आपको दिखाई गई है हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे देश के, जो 1757 से लेकर के 1857 यानी 10 ईयर्स का जो रहा वो दिखाएंगे. और इस पिक्चर्स के जो स्पीच बबल्स आपको निकल के दिखाई पड़ेंगे, वो स्पीच बबल्स ये आपको क्लैरिफाई करेंगे, समझने में ये आसान करेंगे कि उस समय 1857 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था हमारी कंट्री में, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ था हमारी कंट्री में, नॉट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस in 1857. So let us see, because it is very interesting chapter. The martyrs. Martyrs means, you know who are the martyrs. Martyrs are a person who are died, who have sacrificed their life, who had given their life. They are known as a martyrs. Shaheed, like Shaheed Bhagat Singh, like Shaheed-e-Azam Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, and in Kargil World War, in Pulwama attack, in Uri attack, all these the soldiers who are giving their lives are known as a martyrs. At a function in Delhi, एक फंक्शन, एक सभा हुई दिल्ली में. दिल्ली, as we know, it is capital of India nowadays. Earlier in the time of British, Kolkata was the capital of India. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of Indian martyrs.
in the speech one function, and in that function a woman is speaking, and all the ministers, chief ministers, prime ministers, they all are sitting. Actually she is an anchor, this woman is an anchor. What does she is playing a part. She tells, मेरे देशवासियों अपनी आँखों को आंसुओं से भर दो, क्योंकि अब हम उन शहीदों को याद करने जा रहे हैं जो भारतीय शहीद हैं। भारत के वीर जवानों को हम लोग याद करने जा रहे हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757-1849, कंपनी का कॉन्क्वेस्ट क्या रहा उस समय। यहाँ पे कंपनी का मीन्स एक फर्म। इन दिस कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता क्या है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब एक टेरिटरी जो कि किसी ने मिलिट्री फोर्स से, तानाशाही से, डिक्टेटरशिप से अपने कब्जे में ले लियो, कोई एक प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लियो, तानाशाही या गुंडई से, एरिस्टोक्रेसी से उसने ले ली हो, तो उसको कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। तो कंपनी का कॉन्क्वेस्ट, तो कंपनी का मतलब तो समझ ही रहे हो, कंपनी का मतलब एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये मतलब जो कि एक कंपनी थी, मतलब ये कंपनी थी यहाँ के क्या मतलब गेहूँ, यहाँ जो है चूड़ा मिलता था, ऐसी कोई कंपनी नहीं थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जैसे मिलिट्री की बटालियन होती है, वेल्थ का काम देखने का, इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर है, जो इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने किया है उसको देखने का। देखो पुराने बातों में अगर आए, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे स्टार्टेड कॉन्क्वायरिंग ऑन अस, बट दे हैव डन सम इन्वेस्टमेंट and it was under the bond of East India Company. This was their powerful weapon. This was their powerful weapon. That's why they were staying in India, because they were showing their expenses in India. So this East India Company, how does this East India Company conquered India? An incredible India. So I am near to focus on the point. So see here what I am explaining to you. What was the company's conquest? It was during 1757 to 1849. So what happens here? Which is superior weapons? अपने जो मतलब उस समय के जो आधुनिक हथियार थे, जो सबसे शक्तिशाली हथियार थे, जो सबसे मजबूत, जो सबसे शानदार हथियार थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर को 18th सेंचुरी में बढ़ाने लगी, यानी 1756 के समय में। यहाँ पर यू कैन सी दैट हियर इट इज़ इंडियाज़ मैप, एंड इन दिस इंडियाज़ में ये इंडिया के प्लेस हैं। दिस वन इज़ इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड एवरीथिंग। दिस वन इज़ इंडिया, यू कैन सी, and the red one, pink one is the British territory. So how does this British territory occupied these places? Without any reason, can you go and occupy a certain place and area near about you? Not even though you would not be allowed to play a cricket match on the ground of others. So how is it possible? But because of East India Company, they were conquering the lands of India. India princes were short-sighted. That upstart Raja Bah called the English merchants. They will help me to defeat him. Indian princes, जो भारत के मतलब कि प्रिंसेस का मतलब यहाँ पे देखो PRINCES लिखा हुआ है। ये प्रिंसेस का मतलब इंडियाज वेल्दी पर्सन्स, इंडियाज वेल्दी पर्सन्स। उनके साथ क्या हुआ, वो शॉर्ट साइट कर दी। सी हियर द मीनिंग ऑफ शॉर्ट साइटेड इज एबल टू सी थिंग्स क्लियरली ओनली व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू यू। सो मीन्स हियर द पर्सन इन इंडिया, दोज हु वर वेल्दियर, they were not able to look around the things, and if some problem occurs, if due to some conspiracy,
between. सो इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, मैंने जैसे कि बताया इंडिया के वेल्दी पर्सन्स जो थे बहुत शॉर्ट साइटेड थे, बहुत कम किसी चीज़ को समझ पाते थे। जब कुछ चीज़ें समझ पाते थे तभी समझ पाते थे इफ़ द वो थिंग्स वर क्लियर टू देम। इफ़ द थिंग्स आर नॉट क्लियर दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट एवरी टाइम दे यूज टू डू, दे यूज टू टेक द हेल्प, सीक द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स वर हेल्पिंग देम and they were looting them. So in this way the kings were divided, the kings were not united, the wealthy persons were not united with each other, the people had no peace due to such constant fight. और उस समय लोगों को जब ऐसी फाइट देखने को मिलती थी, सच टाइप ऑफ फाइट, सच जो भी लोग रहते थे वो शांति से पीस उनको नहीं मिलती थी। दैट इज़ वाई दे वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद दिस कॉन्स्टेंट फाइट, लगातार फाइट्स की वजह से। The rivalries helped the East India companies and it could easily subdue Indian princes one by one. ये जो rivalry थी यानी लोगों के बीच में जो एक दूसरे के खिलाफ जो चल रहा था, जिस तरीके की rivalry हो रही थी, षड्यंत्र हो रहे थे, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, कट रहे थे, इसको rivalries कहा जाता है। इसी चीज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ज़्यादा मदद कर दी। इससे लोग टूटने लगे और इंडियन प्रिंसेस पर एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया इंडियन। देखो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, उस समय रॉबर्ट क्लाइव, द नेम ऑफ द person is Robert Clive. He was the governor of India in 1757. So at that time Robert Clive यहाँ पर आया and he used his policy divide and rule. तो उसने क्या किया, राजा को राजा से लड़ाना आपस में चालू कर दिया। That Robert Clive and he started conquering the kingdoms. He started conquering the wealthier persons. In this way Robert Clive started. बचपन से ही वो बहुत, मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी रखी है, बचपन से ही from childhood he was very much he was like his mind was total full of criminality. तो मतलब कि वो एक तरीके से लड़ाई काट मार झगड़ा बचपन से ही वो पसंद करता था। जब वो इंडिया आया तो इंडिया में लोगों को मारने काटने लगा। ही स्टार्टेड कटिंग चॉपिंग द पर्सन्स ऑफ द इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव, you should know this, a far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. और एक जो दूर की सोच रखने वाले थे रूलर, यानी जो दूर से भी सच्चाई को देख लेते थे रूलर, जैसे कि बहुत ही बहादुर रूलर थे टीपू ऑफ मैसूर, टीपू मैसूर के। उन्होंने ब्रिटिश रूल से तब तक लड़ाई की जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, टिल द टाइम दे वर नॉट डाइड। थैंक गॉड देयर इज पीस इन आवर कंट्री नाउ, नो मोर वार्स, नो लूटिंग बाय ठग्स, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। देखो यहाँ पे बेवकूफ़ कैसे कह रहे हैं, एक कह रहा है कि भगवान का धन्यवाद है कि अब हमारे देश में शांति है, ना कोई युद्ध हो रहा है, ना कोई लड़ाई हो रही है, ना कोई ठग। उस समय ठग होते करते थे, बहुत ज़्यादा ठग होते थे, दे वर ट्राइंग टू लूट, तो उनको ठग्स दे दिया गया था नाम, तो ठग लूट भी नहीं कर रहे हैं। और राजा द किंग, द एम्परर, जो भी रूल करता था कंट्री के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कहता अरे भगवान ही हैं जिन्होंने ब्रिटिश को हमारे पास भेजा। अब देखो, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, ऐसा लगता है, तीसरा कहता है ऐसा लगता है हमारा जो भाग्य है उनसे कहीं ना कहीं मेल खाता है, कहीं ना कहीं संबंध रखता है, रिलेशन है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, इंडियंस जो हैं कैसे इस कॉन्क्वेस्ट को, मतलब इस कॉन्क्वेस्ट पे कैसे रिएक्ट कर रहे थे। जैसे कोई भी बात गवर्नमेंट कुछ भी लॉन्च करती है अगर कंट्री में, तो हम इंडियंस क्या करते हैं, उस पर कॉन्स्पिरेसी और उस पर पॉजिटिव सोचना, उस पर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और फिर इसकी मीटिंग्स होती हैं चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, स्कूल कॉलेज के गेट्स पर, मार्केट्स में, ट्रेन्स में, बस में, ऑफिसेस में, हर जगह सेम वे इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग। उसके बाद द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, जो लेकिन गोरे लोग हैं ना, इन लोगों ने हमारे राजा को या तो मार दिया है या तो फिर उनको गद्दी पर से उतार दिया है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर, और कुछ लोग सोच रहे हैं, ये भी सोचते हैं कि अब हम उनके स्लेव हो गए। स्लेव्स मतलब कि दास प्रथा, इट इज नोन एज दास प्रथा इन हिंदी। स्लेव, यू आर बॉन्डेड टू वर्क विद देम, दिस इज नोन एज स्लेव्स, फॉरेनर्स के। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल
दे वर ऑफ दिस लैंड। कोई राजा, कुछ राजा तो नहीं अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो इस देश के थे, इस धरती के थे, यहाँ के थे। देवर आवर्स, These the person were thinking। अब ब्रिटिश रूल की बात करते हैं। जब 1765 से 1836 में ब्रिटिश रूल ने क्या क्या किया। रिलीजियस लीडर्स preached ideas like untouchability and child marriage। दो धार्मिक लीडर्स थे, वो एक आइडिया सबको सिखाते थे अनटचेबिलिटी, अछूत के ऊपर, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के ऊपर। क्या बता रहे हैं? Anyone who crosses the seas loses his religion। He is telling, if you are crossing the length, if you are crossing the line, you cross your religion, you lose your religion। यानी कि जो तुम्हारी जितनी मर्यादा है, जहाँ तक तुमको रहना वहीं तक रहो, उससे आगे कहीं जाओगे तो अपना रिलीजन खो दोगे। All the misery is the world in the world is due to women। अब एक कहता है ये जितनी भी रहस्यमय चीज़ें होती है ना हमारे देश में, ये केवल और केवल वुमेन की वजह से होती है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड डैम। हकीकत क्या थी? जो इंडियंस थे वो अपनी आत्मसम्मान, अपना आत्मसम्मान उनका गायब खो गया था, उनका आत्मसम्मान खो गया था। ब्रिटिश जिस तरीके से उनको स्कॉर्न कर रहे थे, हियर द मीनिंग ऑफ स्कॉर्न इज, स्कॉर्न का मतलब मैं बता रहा था, तो स्कॉर्न का मतलब ये होता है कि जैसे किसी को दिखाना कि उसका सम्मान पूरी तरीके से खो चुका। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ उन लोगों के साथ कर दी थी, इंडियंस के साथ। द मीनिंग ऑफ स्कॉर्न इज़ द फील और टू मे बी शो, टू फील करना या फिर टू शो समवन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट। किसी चीज़ की, किसी की रिस्पेक्ट को नहीं है ऐसा। कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और उसके बाद भी सारे अनाज ले लेते हैं, उसके बाद भी कहा जाता है कि अभी भी तुम्हारे ऊपर एरियर का सरचार्ज बचा हुआ है, अगर तुमने पे नहीं किया तो मैं तुमको जेल भेज दूंगा। ओ माय गॉड, सच काइंड, इतनी दुर्गति होती थी, इतना बुरा होता था। सी हियर वी कैन सी इट क्लियरली, हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं हाउ इट वाज हैपनिंग। लेकिन what to say, in India also the same thing, Indian person were also like that only। मतलब कहते हैं ना वो जिसके पात्र थे, ऐसा स्टोरी को पढ़ने के बाद लगता है। बिकॉज दे वर डिवाइडेड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अभी भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ और मेथड्स निकाले जिससे कि उनको और ज़्यादा फ़ायदे होने लगे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट बनते थे उनको जब इंडिया में लाया जाता था तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। और ये उन ऑफिसर्स का बहुत ही अच्छा आइडिया था
द ईस्ट इंडिया लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉ था वो धीरे धीरे क्या करने लगा, इंडियन इंडस्ट्री जो थी, भारत की जो इंडस्ट्री थी उनको क्रिपल करने लगे, उनको काटने लगे, उनका काट छाट होने लगा। देवर मतलब वो ऐसे कगार पे आ गए भुखमरी के, देवर ऑन द स्टारवेशन, ऑन द सीन ऑफ स्टारवेशन। इनएविटेबली फैमाइंस फॉलोड, और इसी तरीके से इनएविटेबली, ना चाहते हुए भी ये भुखमरी आ गई। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस, 15 लाख भारतीय भुखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उसने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सपर्ट्स को, आर्टिशियंस को, उनके बिजनेसेस को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। It was ruined, it was destroyed. So my dear student, till today here I am completing. In next week I would be coming with new video and moving ahead. Thank you. Have a nice day. Watch my channel to get old videos of your chapter. Many students are commenting they need the old videos. So like my channel, subscribe my channel, you will get there, and after subscribing, see all the videos, all are for you. Thank you.